Hello students, we are seeing class 9th science chapter number 1, that is matter in our surrounding. Okay, in this topic we have seen what is meant by matter. We have seen what is matter made up of. Matter means anything that has mass and occupies space is called as matter, है ना? And what is matter made up of? Matter is made up of molecules. Matter is made up of very, very tiny particles that we have seen. Then we have seen characteristics of particles of matter. What are they? Particles of matter attract each other, they have space between them, and they are continuously in motion. And we have seen that the kinetic energy of particles of matter increases with what? Temperature. That we have seen. After that we have seen states of matter. Okay, what are different states of matter? They are solids, liquids, gases, plasma, and Bose-Einstein condensate. Okay, these things we have seen. Afterwards we have also seen that characteristics of solid, characteristics of liquid, gases, plasma and B condensate. Plasma and B condensate का अपन ने सिर्फ मीनिंग देखा है. We don't have their characteristics for study this year. Okay, now we have seen that particles of solid only vibrate across its mean position. They are so closely packed that they cannot change their place, they cannot move, they cannot leave their place, but they can vibrate at their mean position. अपने mean position के across वो क्या होते हैं? vibrate होते हैं, और उनकी जो kinetic energy है temperature के साथ में increase होती है. Particles of liquid, we have seen that they can move freely inside the liquid. Okay, liquid के अंदर वो क्या होते हैं? freely move हो सकते हैं. That we have seen. The motion is called as Brownian motion. The motion of particles, they can move in all possible direction randomly. Their motion is called as Brownian motion. And gases, we have seen that gases, they occupy the whole space available for them. जितनी जगह उनको अवेलेबल की है आपने, वो सारी की सारी जगह ऑक्यूपाई करने की एबिलिटी होती है गैस की. वाई? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ गैस ऑलवेज ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, दैट वी हैव सीन, है ना? इसमें एक चीज हमारी एक्सप्लेन करने की कल रह गई थी, वो थी डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मीन्स व्हाट इज डिफ्यूजन? सपोज हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया कि फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है. ये आपको ब्रोमीन गैस का एक एग्जांपल बुक में दिया हुआ है. एक गैस है, एक कंटेनर है. यहाँ पे सपोज 2 कंटेनर कंसिडर करो, बॉटल या जार, जो किसी तो भी डिस्टेंस में से आपने इसको क्या किया है? सेपरेट किया है. एक साइड में आपने रखा ब्रोमीन गैस. ब्रोमीन ब्राउन कलर का गैस होता है. और दूसरी साइड आपने क्या रखी? उसमें एयर भरा हुआ है. और जैसे ही आप दोनों के बीच की जो ये गैप है, वो गैप जैसे ही निकालोगे आप, तो क्या होगा? ये जो गैस है, ब्रोमीन गैस, इट विल मूव थ्रू आउट the mixture, and after some time you will observe that the whole container, all 2 containers will have the same quantity of bromine in it. ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस मतलब कौन सी? जिसमें
गैस थ्रू आउट मतलब यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है. द प्रोसेस इन विच वन गैस is uniformly distributed, not just gas, and this is true for liquid also. One gas or liquid is uniformly distributed throughout the available space. Available space is called as diffusion. इसके एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करो कि मेरे पास एक कंटेनर है. I am having a container. It is filled with liquid, and if I add some sugar in it, okay, some sugar I added here, and after some time what will happen, the sugar will completely dissolve into this water. The process is slow. मतलब अगर मैंने इसमें चम्मच डाल के इसको हिलाया नहीं तो भी कुछ समय के बाद में शुगर क्या होने वाली है, शुगर completely dissolve होने वाली है आपके किसमें, वाटर में. ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस की मतलब आफ्टर सम टाइम दिस सॉल्यूशन विल बिकम ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. आप इसको स्टीर करने की वजह से क्या करते हो, स्टीर जब करते हो आप इसको तो इसकी जो डिफ्यूजन का रेट है वो रेट आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो. ओके, अगर मैंने इसमें वाटर में शुगर की जगह पे कॉपर सल्फेट ऐड किया तो थोड़ी देर बाद ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको स्टार्टिंग को इसमें से थोड़ा सा ब्लू कलर ऐसे सेपरेट होते हुए नजर आएगा अगर कॉपर सल्फेट है तो, हाँ, और थोड़ी देर के बाद में ये कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, ब्लूइश शेड का हो जाएगा. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ओके, डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स में और गैसेस में. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज change in state of matter. Okay, change in state of matter. State मतलब solid, liquid and gases. Can we change the state of matter from one state to another? इसका जवाब हमें पता है कि yes, we can change solids into liquid. How? सॉलिड्स को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, बाय हीटिंग इट. ये जितना हमें पता है वो हम पहले लिख लेंगे कि सॉलिड को अगर मैंने हीट किया तो लिक्विड बनता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. अगर मैंने लिक्विड को हीट किया मैंने तो लिक्विड कन्वर्शन काय में होता है, गैस में होता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग. ओके, बॉइलिंग बोलते हैं इसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं. वेपराइजेशन. ओके, अगर मैंने गैस को कूल किया तो मुझे क्या मिलता है, गैस को कूल करने से आपको मिलता है लिक्विड. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, गैस को कूल करके लिक्विड मिलने की प्रोसेस, इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. ओके, और लिक्विड को अगर मैंने कूल किया तो मुझे क्या मिलता है, इफ लिक्विड इज कूल्ड देन आई एम गेटिंग सॉलिड. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन. गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करूँगी, इट इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन. लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करूँगी, इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूजन और मेल्टिंग. इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूजन और मेल्टिंग. और एक रेयर केस में क्या, रेयर मतलब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, नॉट रेयर, कि इफ यू हीट ए सॉलिड सब्सटेंस इट डू नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड but it is directly converted into gas. Okay, the process is called as sublimation. The process is called as what? Sublimation. मतलब ये जो सारे examples हमने consider किए, इसमें हमने क्या किया है, how we change the state of substance. We change the state of substance by supplying heat, by heating or cooling it. So change in state of matter is done by changing
temperature. By changing temperature of a substance means what? Means by applying or removing heat. आप उसको या तो अप्लाई करो या उसमें से रिमूव करो हीट. You can change the temperature of the substance by applying or removing heat, and by changing temperature you can change the state of the matter. अभी यहाँ पे और एक चीज़ देखो कि मेरे पास सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, इसको मैंने हीट किया तो कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट देंगे हम तो क्या इसका कन्वर्शन लिक्विड में होता है? इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक कंटेनर लो. ये कंटेनर को मैंने क्या किया, इसमें मिक्सचर डाला आइस का, ओके, और इसमें एक थर्मोमीटर रखा. ठीक है, तो इसको हीट सप्लाई करने के तुरंत बाद इसकी स्टेट चेंज होती है क्या? नहीं. आप इसको जो करते हो, मतलब अगर सॉलिड, मैंने आइस का कंसिडर किया तो आइस को अगर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया तो इस टेम्परेचर पे आइस का कन्वर्शन क्या होता है? आइस का कन्वर्शन लिक्विड में होता है. तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, ये कहाँ पे होती है? हर टेम्परेचर पे नहीं होती है. जब तक किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर एक सर्टेन अमाउंट तक के इंक्रीज नहीं होता तब तक उसकी वैल्यू उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती है. एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट melting point, boiling point also. हाँ, melting and boiling point हर substance के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. ओके, तो हम फिर हमारे पहले पेज पे जाएंगे. तो ये जो प्रोसेस है, द फर्स्ट प्रोसेस, सॉलिड्स को हीट करते हो आप तो उसका कन्वर्शन लिक्विड में होता है. ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, एंड द प्रोसेस टेक्स प्लेस एट मेल्टिंग पॉइंट. द प्रोसेस टेक्स प्लेस एट मेल्टिंग पॉइंट. तो अगर आपको किसी ने मेल्टिंग क्या है पूछा तो आप क्या बोलोगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इट up to its melting point is called melting. ओके, सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करने के बाद में उसकी स्टेट क्या होती है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड. इन द सेम मैनर लिक्विड का कन्वर्शन गैस में कब होता है? जब आप उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक के हीट करते हो. जैसे कि वाटर है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक लिख रही हूँ कि आइस जो है, आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट कितना है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर में वो आइस रहेगा. 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का कन्वर्शन काय में होने लगेगा? वाटर में होने लगेगा. ओके, सेकेंड केस, जब अगर मेरे पास एक कंटेनर में वाटर है, ये आप आपके घर पे करके देख सकते हो आराम से. वाटर के लिए इसको मैंने गैस मतलब इसको मैंने क्या किया? बर्न करने के लिए रखा. तो तुरंत मैंने गैस ऑन करने के तुरंत बाद ये बॉईल होना स्टार्ट करता है क्या? नहीं. इसकी स्टेट कब चेंज होती है? जब इसका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में क्या होता है? आपका सब्सटेंस जो है वो बॉईल करना स्टार्ट होता है. सो दिस टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस is called as boiling point of the substance. The temperature at which the liquid is converted into gas is called as boiling point of that substance. Okay, and the process in which we heat the substance up to its boiling point and its state changes to gas. Okay, a process of heating a liquid up to its boiling point
to convert it into gas is called as boiling or vaporization. The process is called as boiling or vaporization. Opposite is the case of gas. When gas is cooled into liquid. अभी गैस है मेरे पास 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली, अगर मेरे पास स्टीम है फॉर एग्जांपल, मैंने इसको कूल करना स्टार्ट किया, इसका टेम्परेचर जब गिर के 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब जाके इसका कन्वर्शन काय में होगा, वाटर में होगा. ओके, तो ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे ना, इफ़ यू आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, तो लिक्विड वाटर जो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर स्टीम का पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, वाटर की स्टीम जो है उसका पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, जैसे ऊपर जाएंगे अपन, यहाँ पे देखो सॉलिड को हीट किया लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड बनेगा, सॉलिड को हीट किया लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल किया तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा. लिक्विड को कूल करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग, उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग. तो जैसे यहाँ पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है. मतलब वाटर को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस तक के कूल करोगे देन उसका कन्वर्शन काय में होगा, आइस में होगा. ठीक है ना, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज़ें जो है अल्टरनेट, ये ध्यान में रखो. ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी स्टीम का पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, पॉइंट बोल रहे, पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट मतलब ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. अभी वैसे लिक्विड को कूल करोगे आप तो उसको आप बोलते हो या तो उसको फ्यूजन बोलते हो, या इसको मेल्टिंग नहीं बोलते, हम इसको फ्रीजिंग बोलते हैं. मेल्टिंग के अपोजिट प्रोसेस है फ्रीजिंग. ठीक है, नेक्स्ट कुछ सब्सटेंसेस सॉलिड से गैस में जाते हैं तो उसको जो बोला जाता है उसका पॉइंट ऑफ सब्लिमेशन. ओके, सो दीज वेर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू चेंज इन स्टेट ऑफ मटेरियल. ओके, तो ये पहला पार्ट है. आप स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए पहली चीज जो कर सकते हो आप, वो कौन सी है, आप बाय चेंजिंग टेम्परेचर किसी सब्सटेंस की क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं. अभी हम देखेंगे कि क्या होता होगा किसी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने सॉलिड कंसिडर किया, सॉलिड को मैंने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने की वजह से सॉलिड में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से उसकी स्टेट चेंज हो गई सॉलिड से लिक्विड के बीच में. तो इससे क्या होता है हीट की वजह से, देखो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं. उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कैसे होता है, ये डिस्टेंस बहुत कम होता है. ठीक है, इनके वजह से इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होता है. व्हेन यू हीट द सब्सटेंस, द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेस. आप सब्सटेंस को जैसे जैसे हीट करोगे वैसे वैसे उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो स्पेस इंक्रीज होंगी, और स्पेस इंक्रीज होने की वजह से उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होगा, ब्रेक होगा. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, और उसके साथ साथ उनके बीच में जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ये तीन चीज़ों के वजह से अगर सॉलिड्स के बीच के डिफरेंस बढ़ा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा. फाइनली अगर वो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर जाता है तो एट दैट मोमेंट द सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, लिक्विड. द सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस. ओके, एंड वाइस वर्सा. तो क्या करते हो, जब आप कोई सब्सटेंस को हीट करते हो उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ब्रेक होता है या डिक्रीज होता है, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। एक कंसेप्ट हमें देखना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी कंसीडर करेंगे। सी एक्टिविटी, इसके लिए मैंने एक कंटेनर लिया। ये कंटेनर में क्या करो, वाटर डाला मैंने। वाटर डालने के बजाय आइस डालो। क्या करो, इसमें आइस के कुछ पीसेस डालो, बहुत सारे पीसेस मैंने इसमें आइस के डाले, और इसको क्या किया मैंने, हीट किया। इसके अंदर एक थर्मोमीटर डालो, जो क्या करेगा, आपका टेम्परेचर नोट करेगा। ठीक है, अभी क्या करो, आपको ये थर्मोमीटर का टेम्परेचर नोट करना है। ठीक है, जब इसके अंदर पूरा आइस से भरा हुआ है ये जार, तो फॉर आइस टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। आइस के लिए क्या होगा, आपका टेम्परेचर कैसे रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अभी आप ऑब्जर्व करो, आप नीचे से इसको कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हो, नीचे से कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हो, और धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके अंदर जो आइस के पीसेस है, ये आइस के पीसेस धीरे धीरे मेल्ट होंगे, और इनका कन्वर्शन क्या होगा, इनका कन्वर्शन आप लिक्विड में होते हुए आप आपके आंखों से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस होते हुए टेम्परेचर आप जो है ना, आपका जो टेम्परेचर है थर्मोमीटर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। थर्मोमीटर का टेम्परेचर कैसे रहेगा, कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। ठीक है, अभी टोटल आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जैसे ही पूरा का पूरा आपका आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट होने के बाद में आपका जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ेगा। थर्मोमीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे ये फिर से अटक जाएगा। इसके बाद में आपको इसमें से वाटर वेपर निकलते हुए नजर आएंगे। ठीक है ना, वाटर वेपर निकलते हुए नजर आएंगे, धीरे धीरे इसमें का वाटर कम होते हुए नजर आएगा, लेकिन थर्मोमीटर का रीडिंग अभी भी क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ये इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पूरे प्रोसेस में आपको 2 पॉइंट ऐसे मिले, पूरे प्रोसेस में आपको 2 पॉइंट ऐसे मिले जिस 2 पॉइंट पे आपके थर्मोमीटर ने फिक्स रीडिंग दिखाया, और वो दोनों पॉइंट्स कौन से थे, एक था बॉइलिंग पॉइंट, एक था पहला था मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा था बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है, जब भी किसी सब्सटेंस की आप ये चेंज करते हो, स्टेट चेंज करते हो, तो स्टेट चेंज करते समय जो हीट आप सप्लाई करते हो वो हीट सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। ध्यान से सुना। हाँ, आपने क्या किया, एट द टाइम ऑफ change of state of a substance, the heat supplied to it do not increase the temperature of the substance। ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ, एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ a substance the heat supplied to it do not increase the temperature of the substance, but it is utilized to what, to change the state, it is utilized to change the state of the substance। मतलब क्या, मतलब to increase kinetic energy of particle and to overcome the
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करो, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओ और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करो। इन चीज़ों के लिए ये अमाउंट ऑफ हीट क्या की जाती है, यूज की जाती है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट। ये जो हीट आप सप्लाई करते हो, इस हीट को बोला जाता है लैटेंट हीट। लैटेंट वर्ड का मीनिंग है हिडन। लैटेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, हिडन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिडन? तो अभी आप लैटेंट हीट को डिफाइन कैसे करोगे? लैटेंट हीट को डिफाइन आप कैसे करोगे? तो इसको हम बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी supplied to a substance that is used to change its state is called latent heat. Okay, the amount of heat energy supplied to a substance that is used to change its state is called as latent heat. This is called as latent heat. There are two types of latent heat. Number one is latent heat of fusion and number two is latent heat of vaporization. कोई हार्ड नहीं है। जो सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में करने के लिए हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो हीट एनर्जी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए सप्लाई की जाती है, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट लैटेंट हीट। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट और एक तरीका है जिससे आप सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर सकते हो। ओके, हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, देखो याद है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। द वन मेथड वी हैव डिस्कस्ड इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ऑफ द सब्सटेंस। सेकेंड वी कैन डू बाय चेंजिंग द प्रेशर, आप प्रेशर चेंज करने के बाद भी सब्सटेंस की क्या कर सकते हो, स्टेट जो है वो चेंज कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल मीन्स आई कैन राइट हियर दैट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा है ना, एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी यानी इसका नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या किया जाता है, आपके सिलेंडर में अंदर हाई प्रेशर गैस इज फिल्ड and because of high pressure gas is converted into liquid. Okay, आप जब रेगुलेटर का नॉब ऑन करते हो, एट द टाइम रेगुलेटर का नॉब ऑन करने के बाद में जो उसके अंदर ये है लिक्विड है, उसका प्रेशर रिड्यूस होता है और वो फिर से काय में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। अगर मैंने आइस हाथ में लिया और उसको प्रेस भी किया तो भी उसका कन्वर्शन काय में होता है, लिक्विड में होता है। ओके, सो बाय चेंजिंग प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। बाय चेंजिंग प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द प्रेशर। ठीक है, ये जो है ये आज का यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो है आज तक देखने वाला, ये हमने क्या किया, फिनिश किया। इसके बाद में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। ठीक है, एक बात ध्यान में रखो कि हमें टेम्परेचर और उसके यूनिट्स जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में क्या करेंगे,
कंटिन्यू करेंगे। ओके।